हमारे डिपार्टमेंट के हेड, हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पीयूष भार्गव अभी इस वेबिनार में अपीयर नहीं हो पाए हैं, लेकिन उन्होंने अश्योरेंस दी है कि वो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम में, इस वेबिनार में अपीयर हो सकें। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो वेबिनार है, जो प्रोग्राम है, उसका आयोजन हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, इसके साथ साथ द काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेल, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ और YGPT की टीम के जॉइंट डायरेक्शन में करवाया जा रहा है। इस वेबिनार का जो थीम है, जो विषय है, वो है ड्रीम इट अचीव इट। अब चूंकि हमारे विभागाध्यक्ष हेड ऑफ डिपार्टमेंट अभी हम लोग के साथ नहीं है इस समय इस वेबिनार में, लेकिन उन्होंने एक मैसेज दिया है। वो चाहते हैं कि मैं उस मैसेज को आप तक कन्वे कर दूं, आपको उस मैसेज को आप तक पहुंचा दूं। तो मैं उसको उनके शब्दों में ही वो चीज़ पढ़ना चाहूँगा। ठीक है, I'm reading his message verbatim. Children are born with imagination and aspiration. As you get older, you begin to realize you might not be afforded the opportunity to achieve your dreams. You feel trapped, boxed in a corner that can easily lead to the hopeless feeling that can be your undoing. Self-confidence, social awareness, and responsible decision-making are all necessary ingredients to believe in you. How do you learn those life skills? Who is your teacher? It's usually a role model that provides that resources. Nothing feels better than setting a goal and accomplishing it. Nothing feels better than knowing you can succeed. Every person is wired to crave social acceptance and purpose in their lives. The strongest factor for success is self-esteem, believing you can do it, believing you deserve it, and believing you will get it. Remember, if you don't like a situation, you can either take action to change it or change the way you think about it. Either way, choosing unhappiness is no way to live. Now, first, I welcome Team YGPT, PT, and then Professor Madhurima Pradhan, Director of the Counseling and Guidance Cell, University of Lucknow, along with her team, who provided such a nice opportunity to our students to participate in a meaningful event. I believe our students will definitely get benefited from it. तो ये शब्द हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे विभागाध्यक्ष की तरफ से, प्रोफेसर पीयूष भार्गव की तरफ से. Now, I would like to call upon Professor Madhurima Pradhan ma'am. She'll brief us about the counseling and guidance cell of Lucknow University. Ma'am. Thank you, Professor Piyush Bhargav ji, Dr. Sushil, and I'm very happy that you have given us an opportunity to interact with our students. And I would like to tell something about this newly formed counseling and guidance cell. This cell is a vision of our Honorable Vice Chancellor, sir, which was inaugurated on 20th October 2021. And the vision of this cell is to support, value, and challenge the students of University of Lucknow to develop their full potential, psychological immunity, and skills. And we want to make this university as a world-class multidisciplinary institution. So as Piyush sir said, that the theme of today's webinar is very meaningful to all of you. Dream it, achieve it. And I must say that you people are in a stage when you are full of all vigor, strength, energy, and vitality. And this is the age of making meaningful goals and putting all your efforts to achieve it. No matter how obstacles come, कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन ये मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब में वो स्किल, वो हुनर, वो कौशल है कि आप उस समस्याओं से उभर जाएंगे और आपके अंदर जो भी कौशल है, जो भी एनर्जी है, उसको आप जरूर एक्चुअलाइज करेंगे. जैसा कि मैंने बात की
कि ये सेल इसलिए बना है कि हम अपने स्टूडेंट्स की साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी डेवलप करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारी अनसर्टेनिटी है इस समय, जो भी हमारी परिस्थिति इस समय चल रही है ड्यू टू कोविड-19, फिजिकल इम्यूनिटी तो जरूरी है ही, लेकिन साथ में एक साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बहुत आवश्यक है, जो कहीं शायद फिजिकल से भी ऊपर है। क्योंकि जब हमारे अंदर साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी होती है, तब हम कैसे भी परिस्थिति होती है उसमें एक रास्ता हम निकाल ही लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो इस सेशन का उद्देश्य ये है कि आपको अपने सपनों से जोड़ना, क्योंकि सपने ही हमें आगे ले जाते हैं। और एक हमारे जो राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम आजाद जी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो मेरा विश्वास है कि आप सब इस सेशन के बाद जरूर इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे कि आप ऐसा कोई ना कोई एक सपना जरूर ढूंढें, एक ऐसा लक्ष्य जरूर ढूंढें जो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करे और आप पूरी लगन से और हिम्मत से उसको प्राप्त करने में जुट जाएं। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बहुत सिंपल है, बहुत समझना, लेकिन उसको बहुत जरूरी है कि इफ यू फेल टू अचीव योर ड्रीम्स, change your ways, not your principles. Trees change their leaves, not their roots. तो अगर कहीं असफलता मिलती है तो आपको अपने लक्ष्य में चेंज नहीं करना है, अपनी उस एनर्जी में चेंज नहीं करना है, बल्कि आपको उस कौशल या उस स्किल को डेवलप करना है जिससे कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। और मुझे पता है कि आप सब में कौशल है, आप सब में हुनर है, आप सब में स्ट्रेंग्थ्स है और आप जरूर उसको पहचानेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हमारे इस वेबिनार का उद्देश्य यह है कि वी वांट यू टू इंटरैक्ट विद अस, वी वांट यू टू इंटरैक्ट विद counseling and guidance cell. We are here to handhold you. If you have any desire to talk to anyone, we are full team are there to for you, and our schedule is given on the website, the time and day. You can call anytime and speak to us and share your problems or the challenges which you are facing at present. So very warm welcome to our YGPT team who has kindly consented to collaborate with us with counseling and guidance cell, and the speaker of the day, Ms. Anuradha Hemant Bhatkar. I would also like to welcome Jasmine ji for this platform, for helping us to organize this program for our students. I would also like to thank the head Professor Piyush Bhargav ji, our coordinator, Mr. Sushil Chand, student volunteers, Abhay Pratap Singh, Amit Prakash, Tushar and Shubham, who have worked tirelessly to materialize this event. So very warm welcome to all of you. And now the floor is yours. Over to you, Mr. Sushil Chand. परम आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रोफेसर पीयूष भार्गव सर, प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग, आदरणीय प्रोफेसर मधुरिमा प्रधान मैम, निर्देशक काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेल, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय अनुराधा हेमंत भटकर मैम, सम्मानित शिक्षकगण तथा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं अमित प्रकाश वैश्य, बीए ऑनर्स AIH विभाग का छात्र, आप सभी लोगों का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज इस अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं मनोविज्ञान विभाग के छात्रों की ओर से जो चंद शब्द कहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। माननीय मुख्य अतिथि मैम की गरिमामय उपस्थिति से इस वेबिनार की शोभा में चार चांद लग गए हैं। इसके लिए मैं सभी शिक्षकगण, लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से छात्रों की ओर से माननीय अतिथि महोदया के प्रति गहरा सम्मान एवं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। आज जो हस्ती हम सब के बीच अतिथि बनकर जुड़ रही है, वो आज तमाम विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आप एक इंजीनियर होने के साथ साथ कुशल करियर काउंसलर भी हैं। आपने अनेक संस्थानों जैसे रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइम्स ऑफ इंडिया इत्यादि में कई वर्कशॉप्स का सफलतापूर्वक आयोजन भी किया है। वर्तमान में आप युवा मार्गदर्शक संस्थान की निर्देशक भी हैं। आपके संस्थान ने कई शैक्षिक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कैंपस टू कॉर्पोरेट
कार्यक्रम का आयोजन करके अनेक छात्रों के भविष्य को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। महोदया, आप सक्रिय रूप से यूथ फॉर ग्लोबल पीस एंड ट्रांसफॉर्मेशन YGPT नामक स्वयंसेवी संस्था में नियमित 5 वर्षों से अधिक सराहनीय सेवा प्रदान कर चुकी है। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि YGPT टीम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को एक आदर्श युवा बनाना है, उन्हें सशक्त करना है और इसके लिए प्रेरणा प्रदान करना है, जिससे वे समाज के प्रति सकारात्मक विचार ला सकें और समाज में सकारात्मक परिवर्तन कर सकें। सेमिनार के माध्यम से यह टीम सभी युवाओं को उनके जीवन में चुनौतियों का सामना करने हेतु उनको काबिल बनाने के लिए तथा उनको अपने सपनों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। आपने हम युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए देश के हर कोने में उत्कृष्ट युवा विकास कार्यक्रमों का आयोजन करके सतत अग्रसर एवं सतत नवीन बने रहने की प्रेरणा प्रदान की है। आज हम सब लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र आपकी उपस्थिति से स्वयं को कृतज्ञ मानते हैं तथा आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों तथा प्रतिभागियों का सहृदय स्वागत करते हुए मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूँ। इस वेबिनार के अंत में सभी प्रतिभागियों को अपने प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया जाएगा और वे अपने प्रश्न चैट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करता हूं कि कृपया इस वेबिनार की मर्यादा को बनाए रखें और हमारा सहयोग करें। अब इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुराधा मैम से निवेदन करता हूं कि अब वे हम सब छात्रों को संबोधित कर हमें प्रेरणा प्रदान करें। मैम प्लीज। नमस्ते, आप सभी को मैत्री अनुराधा जी की तरफ से बहुत सारा प्रेम। थैंक यू सो मच। आप सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि आप सबकी हिंदी सुनकर हमें बहुत बहुत आनंद हुआ, क्योंकि हम जहाँ से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो वहाँ पर इतनी अच्छी हिंदी बहुत कम बार सुनने मिलती है। हम जो आज का सेशन करेंगे उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रखेंगे, लेकिन यदि मुझसे कुछ हिंदी बोलने में ऊंच नीच हो जाए तो आप लोग मुझे माफ़ कर दोगे ना? गुस्सा तो नहीं करोगे ना? ऐसा तो नहीं सोचेंगे ना कि अरे बाप रे, बुलाया किसे था और बात कैसे करें? ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है? सो जैसे हमारा देश कितने अलग-अलग जगहों पर है ना, तो हर एक जगह का लहज़ा अलग होता है। तो हम जहाँ से वहाँ से अच्छी हिंदी बोलने की कोशिश करेंगे, कुछ ऊपर-नीचे हो गया तो हमें माफ़ कर दीजिए, ठीक है? सो सबसे पहले तो हम लखनऊ यूनिवर्सिटी का बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं कि ये करियर और जो हमारे काउंसलिंग के बारे में जो आपने सोचा है ना, ये बहुत ज़रूरी है। पिछला 1.5 साल जो था उसमें तो हमें ये और ज़्यादा पता चल गया होगा ना कि हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता है कि हमारे जीवन में ऐसा कोई हो जो हमें गाइडेंस दे। मार्गदर्शन यानी क्या? जो उसे पता है, क्या वही सिर्फ आपको बताए? इज़ दैट द राइट गाइडेंस? क्या वो आपके काम का होगा कि सिर्फ हम आपको बताएं कि चलो ये सब है, तो फिर तो वो टीचर हो गया है ना, सिखा दिया ये ऐसा ऐसा है वैसा करो। नहीं, मार्गदर्शक आपके लिए वो होगा जो आपकी अच्छाई से आपकी पहचान कराए, आपकी बुराई से आपकी पहचान कराए, और दोनों में से आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आपको सहायता करे। आपके मार्गदर्शक का ये सोच नहीं होनी चाहिए कि इसने यही करना चाहिए, नहीं। मार्गदर्शक कौन होगा? आपका मार्गदर्शक वो होगा जो आपको सहायता करेगा अपने आप की खोज करने के लिए, ठीक है? और हम सभी आज के जिस सेशन में मिले हैं उसका नाम है गोल्स, यानी लक्ष्य, है ना? आपने नाम सुना क्या है? ड्रीम इट, अचीव इट। फिर ये मैं क्या कह रही हूँ कि लक्ष्य, सपने और लक्ष्य, इसमें कोई एक जैसा है? इज इट सेम, डिफरेंट? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? वैसे तो मुझे पता है हम सबके पास ये वाली चीज है, क्या सबके पास में होती है ना? आई एम श्योर आप सबके पास होगी। तो उसमें आप सब बहुत सारा, मेरे जैसे आप भी बहुत सारा चैटिंग करते रहोगे। सो यू कैन ऑल्सो चैट, हम यहाँ पर भी चैट कर सकते हैं। आपको अगर कुछ भी लगता है, जो क्वेश्चंस आई एम आस्किंग यू, या आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपने क्वेश्चंस, ओके? सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन टुडेज सेशन? वेरी सिंपल। सपने किसके हैं? आपके हैं। पूरे किसे करने हैं? आपको पूरे करने हैं। व्हाट विल वी डू टुडे? आज क्या करने की कोशिश करेंगे? आज हम केवल इतना जानने की कोशिश करेंगे, हमारे क्या करने से इतने सारे सपने होते हैं। पहले तो बहुत सारे सपने होते हैं ना, ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने जिंदगी में खाली एक ही सपना देखा या कोई सपना नहीं देखा। रोज रात को सोते हैं, कुछ ना कुछ सपने आते हैं। रात भर में आप इतने सपने देखते हो, उसमें से कुछ ही सपने आपको याद रहते हैं। उनमें से कोई सपना ऐसा होता है जिसको पूरा करने की आपके मन में इच्छा आती है, और वो कुछ इच्छा हमेशा के लिए रहती है, कुछ आकर चली जाती है। तो ऐसा क्या है
ड्रीमिंग जिसको हम बोलते हैं ना, आई डोंट नो, अभी तो ऐसे बोलूंगी तो थोड़ी सी डांट पड़ सकती है, तो जो भी टीचर्स हैं यहाँ पे मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं जब कॉलेज में थी ना, आज से अराउंड 15 साल पहले, तो मुझे तो बहुत डांट पड़ती थी। किस चीज के लिए पता है? मेरी फेवरेट एक्टिविटी थी। मेरा कॉलेज जो है ना वो एक पहाड़ पर था, वहां पर सामने बहुत अच्छी नदी थी, और जब बारिश आती थी ना तब टीचर जो बोलती है उस पर मेरा कभी ध्यान रहता नहीं था। मैं बाहर देखा करती थी और मेरा ड्रीमिंग शुरू हो जाता था। एंड माई टीचर यूज टू ऑलवेज से, आपको क्या है अनुराधा, गो आउटसाइड। एंड देन खुशी खुशी में बाहर चली जाती थी और फिर भी बस बाहर देखकर सोचती रहती थी। तो ऐसा तो नहीं है कि हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसे सपने देखना आता नहीं है। बहुत अच्छी ताकत है सपनों में। हमारे अंदर एक बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है। हम छोटी सी भी कोई आइडिया लेते हैं तो उससे एक बहुत अच्छा सपना बनता है। अब सपने की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है बताओ? व्हाट इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ड्रीम? कि सपना हम वही अचीव करना चाहते हैं जो हमें खुश करता है। कोई अपना बुरा सपना यानी नाइटमेयर कोई पूरा करना चाहता है। सपने तो बहुत से आते हैं, गलत गलत चीजें भी दिखती है। तो सपना कौन सा पूरा करना चाहते हैं हम वो सपना पूरा करना चाहते हैं जिसको पूरा करके हम आनंद को अनुभव करते हैं। और यदि आप ऐसे सपने को सोचना चाहते हो, सपने के बारे में सोचना चाहते हो, अपने उस सपने से लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हो, तो आपको आज एक चीज समझने होगी। और वो क्या है कि इतने सारे जो अपने सपने हैं, इतने अलग अलग सपने हैं, उसमें से मैं मेरा सपना चुनूं कैसे? ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोई भी इसमें सही गलत जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका सपना आपका अपना है, मेरा नहीं है। All I'm going to help you is to understand how well can you achieve your dream once you think about it. ठीक है, तो आप सोच लीजिए आपका सपना क्या है और उसे पूरा कैसे करना है। तो सपना यानी कैसा? एक कल्पना के जैसा होता है ना। सपना क्या है? कल्पना। और लक्ष्य क्या है? हकीकत। तो क्या फर्क है सपना और लक्ष्य में? आपके सपने को पूरा करने के लिए आपको अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। आप जब एक एक करके एक एक लक्ष्य की पूर्ति करोगे तो आप किसकी ओर बढ़ोगे? अपने सपने की ओर। और कुछ नहीं है। आपका प्लान चाहे कितना भी बड़ा हो, ऐसा सोच लीजिए कि आपको मुझे नहीं पता आपके यहाँ का सबसे बड़ा माउंटेन हिल कौन सा है, रेंज कौन सा है, बट सपोजिंग हम सोचते हैं कि हमें एवरेस्ट पर चढ़ना है। तो बस सोच तो नहीं सकते ना, सपना हो सकता है मुझे एवरेस्ट की ओर जाना है, लेकिन उसकी तैयारी क्या है? आज से आप उसकी तैयारी कैसे करोगे? अपने आप को कैसे उसके लिए फिट करोगे? और उसके बाद में वंस ऑल दैट इज डन, आप किस तरह से उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ सकते हो। आप ये भी डिसाइड करोगे कि 2 दिन में आप क्या करोगे, 3 दिन में आप क्या करोगे, फिर आप जो पहला समिट है वो कब करोगे, सेकेंड समिट कब करोगे, है ना? तो क्या होता है, आपका जो सपना है वो सपने को पूरा करने का जो मार्ग है ना, वो केवल और केवल आपका लक्ष्य बना सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसा क्या है जो हमें ये बता सकता है कि सपना और हमारा लक्ष्य, ड्रीम्स एंड गोल्स, उसमें फर्क क्या है। ठीक है, आप लोगों के पास इफ एट ऑल इफ यू हैव योर पेपर एंड पेन्स विद यू, यू कैन जस्ट नोट डाउन। ठीक है, आप ये सब चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। सो सपना कैसा होता है? वो लंबी सोच होती है ना, मैं एवरेस्ट को पार करूंगा, या फिर आप सोच सकते हो मैं नया स्कूल खोलूंगा। कोई ये सोच सकता है कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, मैं लखपति बनना चाहता हूँ। ये आपका सपना हो सकता है। सपना जो है वो करोड़पति यानी क्या, हमने डिफाइन नहीं किया है। पहाड़ का सबसे अच्छा चढ़ना चाहता हूँ, डिफाइन नहीं किया है। और आप जो भी सपना चुनते हो ना, उसके पीछे हमेशा आपके जीवन का पूरा संपूर्ण विजन होता है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य, मुझे मेरा सपना है कि मैं एवरेस्ट को चढ़ूं, तो यकीन मानिए वो व्यक्ति ऐसा होगा जो अवश्य अपने जीवन में क्या चाहता होगा। सबसे पहले तो वो माउंटेनरिंग यानी गिरिरोहण उसे पसंद होगा, तभी वो चुनेगा। वो साथ ही साथ उसको खतरों से खेलना अच्छा लगता होगा, उसे अपने जीवन में एडवेंचरस चीजें करना पसंद होता होगा। तो आप जिस सपने को चुनते हो ना, वो आपके बारे में बहुत कुछ बताता है, वो आपका विजन होता है। और आप जो भी कुछ करो, जैसे अभी दूसरे का सपना क्या था, वो करोड़पति बनना चाहते हैं। अब इसमें कहा दूसरों का भलाई आया, उसमें भी दूसरों की भलाई है। कैसे? आप जो भी काम करोगे उससे दूसरों का अवश्य भला होगा। कैसे?
अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कोई बिजनेस करोगे तो उसके अंदर डेफिनेटली लोग होंगे, उनका भी आप उनको भी रोजगार दोगे। तो ऑब्वियसली वॉट एवर योर ड्रीम इज दैट विल ऑलवेज ऑलवेज बी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। अब क्योंकि ये सपना सबके लिए था ना, तो उसमें हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो इनटैंजिबल था। लेकिन यही सपने को हकीकत में बदलने के लिए जब हम लक्ष्य की बात करते हैं, तो लक्ष्य जो होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट टर्म होता है। अगले उसका पीरियड डेफिनेट होता है, कितने समय के लिए आप करेंगे उसको, शायद सही शब्द कालावधि है। आपका जो लक्ष्य होता है ना, वो हमेशा समय से जुड़ा होता है। दूसरा होता है कि आप वो समय में, दिए गए समय में आप क्या करोगे, ये आपका लक्ष्य तय करता है। सो इट इज टैंजिबल। सपना जो था वो किसके बारे में था, हमारे जीवन के विजन के बारे में, कि मैं ये करना चाहता हूं। लेकिन एक्शन गोल जो होता है वो कैसा है, आपका एक्शन ओरिएंटेड है। आप क्या कर सकते हो, आप कैसे करना चाहते हो, उसके विषय में आपको हमेशा गोल्स बताते हैं। और एक चीज है जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में, ड्रीम्स जो है, सपने जो है, उसमें हमेशा दूसरों की भलाई होती है। लेकिन जो आपका लक्ष्य है ना, उसमें दूसरों की भलाई शायद हो या नहीं हो, वो दूसरों के लिए शायद हो नहीं हो, आपके लिए सदैव सही होगा। क्योंकि अगर कोई सोचता है कि उसे लेट्स से उसको स्कूल खोलना है, तो वो स्कूल खोलने के लिए उसे गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाकर सारे पेपर जमा करने होंगे। अब वो भी एक गोल है, पर उससे दूसरों की भलाई नहीं हुई, लेकिन जो सपना है उसकी जरूर भलाई हुई। तो आपके जो गोल्स हैं, आप ऐसा समझिए कि अगर हमें 100 फ्लोर पर पहुंचना है, 100 मंजिलों की बिल्डिंग पर अगर हमें चढ़ना है, तो एक एक जो आप पड़ाव पार करते हो, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, वो होते हैं गोल्स। बिना पहला गोल पार किए आप दूसरे गोल पर नहीं जा सकते हो, और बिना गोल को प्राप्त किए, बिना वो प्रत्येक मंजिल को प्राप्त किए आप अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, अपने जीवन में अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें सबसे ज्यादा आवश्यक है अपने लक्ष्य पूर्ति की। और वो लक्ष्य कैसे होते हैं, तो लक्ष्य हमेशा बदलते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आई एम श्योर आप लोगों ने किया है क्या, आप करते थे हर सेमिस्टर, बिकॉज आई एम एन इंजीनियर ना, तो हर सेमिस्टर के पहले मैं हमेशा सोचती थी ये सेमिस्टर है ना, मैं शुरू से पढ़ाई करूंगी, एकदम शुरू से पढ़ाई करूंगी, बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना है। तो एक अच्छा सा टाइम टेबल बन जाता था। फिर वो टाइम टेबल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती थी। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होता था, वो टाइम टेबल फॉलो नहीं होता था, और टाइम टेबल फॉलो नहीं होने की वजह से एग्जाम के पहले दिन आता, फिर दिखाई देता यार बहुत ज्यादा चैप्टर्स बाकी रह गए। अब क्या करती हूँ, अभी भी 1 महीना बाकी है एग्जाम को, हाँ, तो अब मैं सोचती हूँ ठीक है 10 चैप्टर करने हैं, अरे बहुत समय है, एक दिन में एक चैप्टर करें, सॉरी 3 दिन में एक चैप्टर करेंगे, सब पूरा हो जाएगा। एक और टाइम, तो अभी गोल क्या है, 3 दिन में एक चैप्टर को पूरा करना है। पहले दिन क्या सोचते हैं हम, दूसरे दिन कर लूंगी, अभी 2 दिन बचे। तीसरा दिन आता है, लगता है अरे बाप रे ये समय खत्म हो गया, जाने दो, आज का दिन जाने दो, मैं कल से जरूर अच्छी पढ़ाई करूंगी। सबके चेहरे पे हंसी आ रही है, शायद जिनके वीडियोस बंद है ना, वो उनको भी मैं समझ सकती हूँ कि वो लोग हंस रहे हैं, क्योंकि ये सच्चाई है। तो ये जो हमारे गोल्स होते हैं ना, वो क्यों पूरे नहीं होते, हम लक्ष्य, सबको पता है कि हमें लक्ष्य तो सेट करना ही है, लेकिन वो पूरे इसलिए नहीं होते ना, क्योंकि कई बार हम उसे बहुत अनरियलिस्टिक बना देते हैं, बहुत ज्यादा उसको टाइट कर देते हैं कि मुझे इतने समय में ये ही करना है, नहीं, और वो करते हुए आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो पूरे नहीं होंगे। तो आज हम जान लेते हैं कि हमारा जो सपना है, जो सपना कौन सा सपना हमने कहा हमारे लिए है, हमारा सपना वो जिससे हमें आनंद आता है। हम में से कोई भी वो चीज तो नहीं करना चाहेगा ना जिसे करने से हमें दुख आता है, नहीं, हम सभी वही करना चाहते हैं जिससे हमें आनंद मिलता है। तो आज आप में से जितने भी लोग हो, आई थिंक वी आर अराउंड 89 ऑफ अस, आप ये चीज जरूर तय कर लीजिए कि अपने जीवन में सिर्फ उसी सपने को पूरा करना जो आपका अपना है। जब कभी आपको लोगों ने बहुत कुछ बताया होगा अब तक सपने के बारे में, कि ये वाला सपना ऐसे पूरा किया जा सकता है, वो करो, आप कमिटेड रहो, आप टाइम टेबल बनाओ, आप ये करो वो करो, सब कुछ करो, लेकिन उससे पहले एक सबसे जरूरी बात है, ये चीज यदि आप याद रखते हैं ना, तो आपको आगे का कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है।
Take time and ensure that the dream that you follow is your own. आपके जीवन का सपना वो हो जो आपका अपना हो. आपके पेरेंट्स ने कहा है इसलिए नहीं, आपके दोस्त कर रहे हैं इसलिए नहीं, मैं ये जॉब करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे इसलिए नहीं, मैं ये करूंगा तो इसकी वजह से मेरे जीवन में मुझे शोहरत मिलेगी इसलिए नहीं. नहीं, आपका सपना वो होना चाहिए, वो सपने में वो कृतियां यानी वो एक्शंस होने चाहिए जिसको आप करना एंजॉय करते हो. आप सबने अपने जीवन में कभी ना कभी साइकिल चलाना सीखा होगा, मोस्ट ऑफ यू, आई होप, है ना? तो साइकिल चलाते वक्त हमें किसी ने कहा नहीं साइकिल सीखो. साइकिल चलाते वक्त हम 10 बार गिरे हैं, 100 बार गिरे हैं, लेकिन उठकर हमेशा साइकिल चलाइए. क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा है साइकिल चलाना. जब आप अपने लक्ष्य को, आप अपने सपने को चुनते हो, तो उसमें जो फेलियर्स आते हैं, उसको पूरा करते हुए जो आपकी तकलीफें होती हैं, उससे जूझने की हमें ताकत मिलती है. किसी बाहरी लोगों की जरूरत नहीं है आपको बताने के लिए. आप खुद से ही ये कर सकते हो. तो सबसे आवश्यक है कि आप अपने सपने को फॉलो करें जो आपका अपना है. और सपना कैसा हो? सपना वो हो जिसे करते वक्त आपको आनंद आए, कुछ भी हो. ठीक है? तो सबसे पहले तो जरूरी ये है. तो अभी हम एक छोटा सा काम करेंगे, एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे जो सब कर सकते हैं. अभी मैंने कहा था ना, जिसके लिए मुझे स्कूल में डांट, कॉलेज में डांट पड़ती थी, वही करेंगे. ठीक है? तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं सब लोग. लेट्स क्लोज आवर आईज. अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अब धीरे से अपने आप को शांत करें. Simply focus on your breath. और आपके जीवन का वो मोमेंट है जब कोई ऐसा सपना है जिसे पूरा करने के लिए आप कई सालों से मेहनत कर रहे थे. आज वो दिन है जब आपको सफलता प्राप्त हुई है. आपके आसपास देखिए कौन से वो लोग हैं जिनके साथ आप अपनी सफलता बांट रहे हैं. आपको कैसा लग रहा है? महसूस कीजिए. अब धीरे से अपनी आंखें हम खोल सकते हैं. वेलकम बैक. स्वागत है आप सभी का. कैसा लगा? सबसे पहले चेहरे पर हंसी आई ना? हमने वही सपना देखा ना जिसको हम करने में बहुत खुश थे. तो आपके साथ कौन से लोग थे? आपके साथ वो लोग थे जिन्होंने आपको आपका सपना पूरा करने के लिए सहायता की. तो सपना पूरा करते वक्त हमेशा हमें दूसरों की सहायता भी लगती है. तो हमारे सपने ऐसे हो जो हमें आनंद देते हो. हमारे सपने हम हमारे आसपास के लोगों के साथ, हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो, आपके पेरेंट्स हो, जो आपको मदद करेंगे. और साथ ही साथ आपका सपना वो होगा जो आपके जीवन के लक्ष्य को पूरा करेगा. आप सोचिए अगर सचिन तेंदुलकर ने डिसाइड किया होता कि मुझे क्रिकेटिंग में नहीं, मुझे सिंगिंग में करियर करना है, अगर उसका सपना होता कि मुझे सिंगिंग परस्यू करना है, तो क्या होता? क्या होता? सही होता वो? नहीं ना? तो आपका सपना, आपके अंदर जो मूलभूत अच्छे गुण है ना? हम में से हर एक के पास मूलभूत अच्छे गुण हैं. ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास कोई एक यूनिक क्वालिटी नहीं है. हम सबके पास एक कोई ना कोई अच्छा गुण है. तो हमारा सपना ऐसा हो जो आपके भीतर के उस अच्छे गुण को साथ में लेकर उसका उपयोग करके आप आगे बढ़ सको. ठीक है? तो सबसे पहले सपना आपका खुद का होगा,
सपना वो हो जो आपके मूलभूत अच्छे गुण का उपयोग करे, इस्तेमाल करे, और आपका सपना वो होगा जो आप अपने लोगों के साथ पूरा कर सके। ठीक है? तो आपने अभी जो सपना देखा है वो सपने को आप लिख सकते हो। इफ यू हैव सीन अ ड्रीम, यू ऑल कैन राइट दैट ड्रीम स्टेटमेंट, और आप चाहेंगे तो आप में से आप यहाँ पर भी उसे शेयर कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो शेयर इट इन द ग्रुप। आई प्रॉमिस यू कि ये पढ़कर मैं किसी को नहीं सुनाऊंगी, बट आप चाहे तो आपके जो भी सपना है उसे ग्रुप में लिख सकते हैं यहाँ पर अपने चैट में। ठीक है? तो पहले आप अगर पेपर की कोई शीट है तो उसके ऊपर आप अपना नाम लिखिए, जैसे सुशील चांद जी, अमित प्रकाश जी, जो भी आपका नाम है ऊपर लिखिए, एंड देन यू कैन राइट मेरा सपना क्या है, एक ही लाइन में, बड़ा नहीं चाहिए, छोटा छोटा, सिंपली राइट व्हाट योर नेम इज। ओके, वो लिख दीजिए आप सभी। और अब सपना लिखने के बाद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम था, हमें कहाँ पहुंचना है वो हमने डिसाइड कर लिया। तो अब हम क्या डिसाइड करेंगे, वहां पर कैसे पहुंचना है ना। हमारे महाराष्ट्र में सब लोग जितने भी यूथ है ना, वो अपने जीवन में एक प्लान जरूर बनाते हैं। पता है कौन सा प्लान? सारे दोस्त होते हैं, वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें गोवा कब चलना है, और फिर ऐसा हो जाता है कि चारों में से एक बोलता है हम चलेंगे, दूसरा बोलता है नहीं चलेंगे, फिर ऐसा करते करते जिंदगी भर वो कभी गोवा नहीं पहुंच पाते। तो हमें ऐसा प्लान नहीं करना है। हमें कैसा प्लान चाहिए कि हमको यहाँ पर जाना है और हम चलेंगे। तो उसके लिए हमको थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी, और वो प्लानिंग होती है आपकी गोल सेटिंग का एक पार्ट, जिसका सबसे पहला हिस्सा होता है जिसमें हम 5 इयर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे आज से 5 साल बाद डॉक्टर बनना है, तो अगर आपको 5 साल या 6 साल के बाद डॉक्टर बनना है, तो 5 साल बाद आप कहाँ पे होने चाहिए? You should be have taken admission in the PhD course, correct? So there are 5 questions. आपके गोल्स में आपको हमेशा 5 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। The first question is what is my goal? मेरा 5 साल का गोल क्या है? What क्या है? ठीक है? उसके बाद आता है बहुत जरूरी प्रश्न कि वो क्यों है। Why do I want to achieve this? आपको लगेगा बहुत बार मैं ये प्रश्न बार बार पूछ रही हूं, लेकिन इसी में सब कुछ है मित्रों। यदि आपका क्यों डिफाइंड है कि आप ये कार्य क्यों करना चाहते हो ना, तो सारी मुसीबतों को आप सामना कर लोगे, क्योंकि आप युवा हो। ठीक है? सो क्यों, व्हाई डू आई वांट टू अचीव दिस। थर्ड इज कब तक करूंगा, यानी व्हेन, बाय व्हेन आई नीड टू डू इट, विद whom, मतलब मुझे ये पूरा करते वक्त किस किस की हेल्प चाहिए, एंड लास्ट इज हाउ विल आई डू इट, मैं इसे कैसे करूंगा। सो व्हाट, व्हाई, व्हेन, विद whom, और लास्ट क्या था, हाउ। आप अगर ये पांचों चीजों को अगर डिफाइन करते हो ना, तो आपके लिए बहुत अच्छे से पूरी तरीके से हो जाएगा। एक चीज जरूर है कि हम में से बहुत सारे जनों के ऐसे सपने हो सकते हैं जिसे करने के लिए अभी के लिए हमारे पास में कोई कमी हो सकती है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए अपने सपने को मॉडिफाई करके वो चीज जरूर पूरी कर सकते हो। आपने शायद, आप ही, आई डोंट नो वेदर शी इज फ्रॉम यूपी और एमपी, याद नहीं है मुझे, आई एम सॉरी अबाउट दैट। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना ही होगा। उनकी दोनों, एक टांग उनकी पूरी टूट गई थी, लेकिन उसके बावजूद, और वो भी टूटी नहीं थी, उनको किसी ने, उनके साथ एक हादसा हुआ था, शी वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, उनके साथ एक हादसा हुआ जहां पर कुछ गुंडों ने उनको ट्रेन में से बाहर फेंक दिया, पटरी पर उनकी टांग कट गई, एक टांग पूरी कट गई, दूसरी टांग जो थी उसमें भी उनको रॉड डालना पड़ा, और उसके बावजूद उन्होंने सब में से बाहर निकलकर एक सपना देखा, और उन्होंने सपना देखा था कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी, और बहुत कठिनाई के साथ, बहुत बहुत कठिनाइयों के साथ उन्होंने वो सपना पूरा भी किया। उन्होंने ये भी, उनका जब लास्ट जो था उनकी, कोई, जब उन्होंने पहली बार ये सपना देखा, जब वो लोगों के पास गई बोलने के लिए मुझे ट्रेन करो, पहले 2 साल तक तो किसी ने उनको ट्रेन भी नहीं किया, कहते कि ये पाँव के साथ तो तुम ऊपर चढ़ ही नहीं पाओगी।
तो लेकिन उन्होंने परसिस्टेंस, यानी उनका सपना किसका था? उनका खुद का था, और इसी वजह से उन्होंने उसे पूरा करने की कोई कमी नहीं छोड़ी। तो उसी तरह से आप अपने लक्ष्य को, आपके अभी मधुरिमा मैम ने भी कहा था कि अगर आपका सपना आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को बदलें, आपको ज़रूरी है कि सपना नहीं बदले, आप अपने आप को बदलिए, तो आपका लक्ष्य ज़रूर पूरा होगा। आप हमेशा ध्यान रखें कि मेरा सपना मुझे पूरा करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो पहले हम 5 ईयर प्लान बनाएंगे। 5 ईयर प्लान हो गया, उसमें आपको शायद सारे डिटेल्स नहीं मिलेंगे। 5 ईयर प्लान के बाद में आप 3 ईयर प्लान बनाओगे। 3 ईयर प्लान में क्या करना है, क्या होगा, और थोड़ी सी क्लैरिटी होती है ना। तो 6-7 साल बाद अगर मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टरेट लेनी है, तो 3 साल में कम से कम मेरा एमएससी या एमए कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप क्या है आपका गोल? टू कंप्लीट माय एमए बाय द ईयर 2020, आज 21 में, सो 2024। पहला प्रश्न था क्या, क्यों करना है? बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट, और उसमें आपको ये भी लिखना होगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है ताकि आपका वो स्पेशलाइजेशन हो जाए। वाई डू आई वॉन्ट टू अचीव दिस? बिकॉज आई वॉन्ट टू अचीव डॉक्टरेट इन सो एंड सो सब्जेक्ट, देयरफॉर आई नीड इतने मार्क्स तो चाहिए, या तो मुझे ये सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? व्हेन, तो आपको वो डेट लिख देनी है 2024, जिस दिन पर आपको करना है। विद हुम, तो अब यहां पर आपको सब लिखना होगा। विद हुम में आपको लिखना होगा कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेनी है, आपको उसके फॉर्म्स का बारे में लिखना पड़ेगा, आपको इसके लिए मदद कौन लिखेगा, ये सब लिखना होगा। एंड लास्ट विल बी, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, ये कैसे करना है। तो ये करने के लिए जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड है वो आपको बेसिक प्री रिक्विजिट्स है उसके बारे में लिखना होगा। आपको आज लगेगा कि ये मैं जो बोल रही हूँ ना, ये बहुत किताबी बातें हैं, नहीं। आप नेट खोलोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जहां पर आपको वो रेडीमेड दिया जाएगा कि दिस इज द वे टू अचीव योर ड्रीम, बट आई डोंट बिलीव इन इट। मैं सच में नहीं मानती हूँ कि उससे हमें फायदा हो सकता है, क्योंकि कोई और मुझे कैसे बताएगा कि मुझे मेरा सपना कैसा पूरा करना है। सपना आपका है, आपकी कमजोरियां, आपकी अच्छाइयां आपको पता है, तो आप अपने सपने का प्लान बनाइए। अपने आनंद की, अपने जीवन की चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए। ओके, तो अपना गोल सेटिंग आप खुद कीजिए। मैं हूं, मधुरिमा मैम है, आपके, हम वाईजीपीटी में, हम जो भी लोग हैं आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन करना आपको है। ठीक है, तो पहले हमने 5 ईयर प्लान बनाया, फिर 3 ईयर प्लान बनाया। उसके बाद क्या कर सकते हैं? 5 ईयर मास्टर प्लान बन गया, 3 साल में क्या करना है बन गया। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात, और वो है, ये सेंटेंस कोई पढ़ेगा, इट सेज ड्रीम स्मॉल एंड रिसीव अबंडेंट पावर। छोटे सपने देखिए और बहुत सारी विपुल शक्ति का अनुभव लीजिए। मैत्रेय दादाश्री जी, ये क्या कह रहे हो आप? छोटा सपना? इतने सालों से जिंदा हूं, सबने तो मुझे हमेशा यही कहा है कि सपना तो बहुत बड़ा होना चाहिए, क्यों छोटा सपना देखने के लिए कह रहे हो? यहाँ पे हम छोटा यानी सपने की साइज की बात नहीं कर रहे, हम पीरियड की बात कर रहे हैं। आप अगर कभी कभी इतना बड़ा लक्ष्य सोच लेते हो ना कि उसके बारे में सोचकर ही हमें डर लगता है, हमें ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, छोटे छोटे कदम लेते हुए उस बड़े कदम की ओर जाना है। जब हम छोटा सा लक्ष्य रहता है ना, तो हम उसको करने के लिए ज्यादा आनंदी होते हैं, वी आर मोर हैप्पी टू अचीव इट। साथ ही साथ हमारे आसपास वाले लोगों का सपोर्ट भी हमें बहुत मिलता है। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, क्योंकि आपने जो सोचा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सोचता है कि उसे वेट लॉस करना है, और वो सोचता है कि मैं 1 महीने में 6 किलो वजन कम करूंगा, नहीं, लेट्स से मुझे 15 किलो वजन कम करना है, तो मैं 3 महीने में 15 किलो वजन कम करूंगा, हर महीने में 5-5 किलो वजन कम करूंगा। अच्छा है ये? आपको लगता है हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, अनरियलिस्टिक है। ये तो बहुत दूर की बात हो गया। आई गिव यू माय ओन पर्सनल एग्जांपल। लॉकडाउन के चक्कर में ना पिछले साल मेरा भी सबका ही शेड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो आई वाज अ अर्ली राइजर, लेकिन मेरा शेड्यूल खराब हो गया, तो मैं रोज 8 बजे उठने लगी थी। अब धीरे धीरे रियलाइज हुआ बच्चों को इतना कुछ हम शेयर करते हैं तो हमें खुद को भी एम्प्लॉय करना चाहिए, तो मैंने भी उठकर सीधा वही कर दिया, ठीक है 4 मैं 8 बजे उठती हूँ, कल से एक काम करती हूँ, मैं 4 बजे उठूंगी।
सुबह 4 बजे उठती हूँ, 2 घंटे 1 घंटा मेडिटेशन कर लूँगी, 1 घंटा जो मेरा पर्सनल पढ़ाई है वो कर लूँगी, 1 घंटा मुझे राइटिंग का शौक है, लिख लूँगी और थोड़ी एक्सरसाइज़ भी हो जाएगी, तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। पूरी उत्सुकता के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ मैंने पहले दिन अलार्म लगाया 4 बजे। 4, साढ़े 4, 5, साढ़े 5, 6, साढ़े 6, 7, साढ़े 7, 8, 10 मिनट और सो जाती हूँ बस। कल पक्का करके मेरे को उस दिन उठते वक़्त 8:30 बज गए। बड़ी आग बबूला हुई मैं अपने साथ कि ये क्या है? व्हाट आर यू डूइंग? ओके? देन सेकंड डे, सेम स्टोरी रिपीटेड। थर्ड डे, सेम स्टोरी रिपीटेड। मैं आपको सच कह रही बता रही हूँ और मुझे ये बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मैं पूरे हफ्ते भर एक भी दिन 4 बजे छोड़ी है, मैं 8:30 के बाद ही उठी। बट देन आई रिवाइज्ड। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मैंने अपने आप के साथ ज्यादती की है। मैं क्यों 4 बजे नहीं उठ पा रही थी? क्योंकि मैं रोज रात को सोते सोते मुझे 12 बज जाते हैं या 12:30 बज जाते हैं। 12:30 बजे उठने वाला सोने वाला व्यक्ति क्या 4 बजे उठेगा? उठ पाएगा? प्रैक्टिकल है? नहीं है। तो मैंने अपने गोल को थोड़ा शिफ्ट किया और मैंने कहा ठीक है, अपन एक काम करते हैं, 8 बजे की जगह 7:30 बजे उठते हैं। तो एक पूरा हफ्ता मैं 7:30 बजे उठ पाई। उसके अगले हफ्ते 7 बजे उठी, उसके अगले हफ्ते 6:30 बजे उठी और उसके आगे मैं गई नहीं, क्योंकि मुझे उतनी नींद की आवश्यकता है। तो आप गोल को जरूर सेट करें, लेकिन यदि वो गोल आपका सेट नहीं हो रहा है, पास पूरा नहीं हो पा रहा है ना, तो उससे पीछे आने के लिए भी क्षमता रखिए, उसको एडजस्ट कीजिए। ठीक है? तो ये बहुत आवश्यक है। प्रैक्टिकल होना चाहिए हमें हमारे ड्रीम्स के बारे में। तो इसी तरह से अगर हमको 1 साल में क्या करना है ना, अगर हमें देखना है, इसीलिए कह रहे सपने कैसे हो, छोटे हो जिससे आप पूरे कर सकते हो। सीधा 8 बजे से 4 बजे वाला सपना नहीं। 8 बजे सोए हो तो 7:30 बजे उठो। हाँ, ये हो सकता है, बॉडी को भी ठीक लगता है, ठीक है, ये हो जाएगा। आप खुद भी कन्विंस्ड हो। सपना पूर्ण करने के लिए, लक्ष्य पूर्ण करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका रेडीनेस। एक बार आपने ठान ली ना, तो आप किसी की भी नहीं सुनोगे। हम सब चुलबुल पांडे नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी हम सच में वैसे हैं। हम सबने अपने जीवन में वो मौका देखा है जब हमने किसी की नहीं मानी, हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे करना है, बस सपने के बारे में वो करना है। तो अपने सपनों को थोड़ा रियलिस्टिक रखिए एंड इट विल हेल्प यू। तो अब जितना हम पहुंचे हैं ना, अब और आगे प्लानिंग करने से पहले ये 4 चीजें आपकी होनी चाहिए। आपका सपना हमेशा अपना होगा। कोई और कर रहा है, शर्मा जी का बेटा ऐसा करके इसलिए नहीं करना है ना? आप सबने देखी है ना 3 इडियट्स? आई होप अभी भी देखते रहोगे कभी ना कभी। शर्मा जी के बेटे ने वो किया इसलिए हमें नहीं करना है। शर्मा जी के बेटे के लिए वो बहुत अच्छा है, हमारे लिए शायद नहीं है। अपने सपने को अपने आप चुने। आपका सपना हमेशा रियलिस्टिक हो, यानी वो करने लायक हो। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते हो कि मैं सूर्य पर पहुंचना चाहता हूं 2 साल के अंदर, क्या वो होगा? रियलिस्टिक है ये? नहीं। अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल तो मैंने आपको अभी देखा दिया कि मैं 3 महीने में 15 किलो वजन कम करूंगा, या मैंने क्या कहा था, 1 महीने में, सॉरी, सेमिस्टर में 3 दिन में 1 चैप्टर पूरा करूंगा। नो, अपने आप को समय दे और आपका सपना क्लियर विजन के साथ होना चाहिए। विजन यानी क्या कि ये जो चीज मैं कर रहा हूं उससे हासिल क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में सबसे जो जरूरी है ना, वो अचीवेबल होना चाहिए।